From Jharkhand, the arms linked to the Jharkhand mining scam. More details coming to light. AK-47 has been found from Hemant Soren's aide's residence. An AK-47 found from Prem Prakash's home. So that is more details with regards to the Jharkhand mining scam and how an AK-47 has been found from yet another aide of Chief Minister Hemant Soren. So this is the information now coming in. Remember, the Enforcement Directorate is raiding multiple locations in Jharkhand as part of the ongoing money laundering investigation into the alleged illegal mining in the state. And now the information coming in is a big twist, with an AK-47 also being found from the residence of the Jharkhand Chief Minister's close aide. More information, of course, awaited whether he had license for this gun as well. Priyank Tripathi is joining us live with more details on this. Priyank, raids also revealing an AK-47 that has been found in the Chief Minister's aide's residence. What are the details that we have? Yes, certainly not even one but two AK-47 rifles, which are assault rifles, which are prohibited weapon in the country, have been found from the location while the Enforcement Directorate was carrying out searches with respect to the illegal mining syndicate which was being operated in Jharkhand. One of the close aide and who's known as Vidhayak Pratinidhi, the representative of the local MLAs who are almost having the powers of the MLA, who was Pankaj Mishra, who was the local representative for the Chief Minister of Jharkhand. When he was arrested, the Enforcement Directorate found that there have been several lapses which has been done by him. A property of illegal mining of 100 crore was done on the behest of Pankaj Mishra and Bachu Singh. These are the two people who are said to be the muscle man of the ruling government in Jharkhand. Stay on with us. Priyank, we have Mr. Deepak Prakash joining us on the phone line. Mr. Prakash, what do you make of this? Yet another Hemant Soren raid, Hemant Soren aide now under the scanner, an AK-47 that has been found from Prem Prakash's home. This is, of course, with regards to the ongoing investigation in the Jharkhand mining scam. देखिए, जब से हम सब लोगों ने आरोप, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार कह रही है, आरोप लगा रही है, आंदोलन कर रही है कि यहाँ पर खनिज संपदा की लूट हो रही है और खनिज संपदा के लूट में मुख्यमंत्री के साथ में रहने वाले का बहुत बड़ा, उसका कह सकते हैं कि वो ही उनके माध्यम से खनिज संपदा की लूट हो रही है और जो मुख्यमंत्री के करीबी और नजदीक हैं। ईडी के पहले भी छापे पड़े और उसके माध्यम से लगातार उनके दस्तावेज और अवैध संपत्तियों का पता चला। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ये आरोप लगाते थे, जो आज सच साबित हो रही है कि इन माफियाओं का संबंध उग्रवादियों के साथ है। और ये आज AK-47 बरामद होने के बाद हमारे आरोप की पुष्टि हुई है। इसलिए पूरे प्रकरण में NIA की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कृत्य है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सारे लोगों पर, जिन लोगों पर ईडी ने पूछताछ की है, कार्रवाई की है, इन सब लोगों से भी NIA पूछताछ करे और ये NIA का केस बनता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये NIA का केस बन सकता है, क्योंकि इनके घर पे ही नहीं और 20 जगह पर भी रेड्स हो रहे हैं। रेड्स में आए हैं कि ये AK-47 इनके घर से आया है। सो यू वांट नॉट जस्ट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन NIA भी स्टेप इन करे। ओबियस। देखिए क्या है कि ये जो हथियार है, खतरनाक हथियार है, जो प्राइवेट लोगों के पास निजी हथियार नहीं हो सकते इस प्रकार के AK-47, AK-57 और इस प्रकार के हथियार का बरामदगी इस बात का सबूत है कि इनके संबंध देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ है। इसको हम बार बार कह रहे हैं और हम लगातार इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से करेंगे। इन खनिज संपदा को लूटने वाले का संबंध उग्रवादियों से है। इस बात का उजागर आज हुआ है AK-47 पकड़ाने पर। इसलिए पूरी तरह से NIA का जांच इस पर होना चाहिए और इसके ये हथियार कहां से आया, किनके माध्यम से आया, ये जानकारी NIA बेहतर ढंग से ले सकती है। जी प्रकाश जी, अगर बात की जाए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो 100 करोड़ का दावा किया गया था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने काफी सारे इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस भी सीज किए थे इन्हीं कई एड्स के घरों से। तो क्या आप ये कंटिन्यूएशन में देखते हैं, क्योंकि ये केस बढ़ता जा रहा है अगर डिटेल्स की बात की जाए तो? देखिए, ईडी का काम है आर्थिक अपराधी और अपराध और अपराधियों को पकड़ना।
समझे ना, खत्म करना। लेकिन ये पूरे प्रकरण को देखिएगा आप, जैसे जैसे मामले आते चले जा रहे हैं तो आर्थिक अपराध के साथ ये देश के खिलाफ एक जो षड्यंत्र रचने वाले उग्रवादियों से संबंध है इनका। मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं। और केवल देश यहाँ पर जिस प्रकार से उग्रवादियों की घटनाएं बढ़ती है, ये बड़ी अफसोस की बात है। जब से ये सरकार बनी है तब से उग्रवादियों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उनको है, मैं बार बार कहता हूं, और इसकी पुष्टि हुई है कि 47 पकड़ाने से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी अभी एक और इनके मुख्यमंत्री जी के और एक नजदीकियों को सम्मान हुआ है, बंगाल के रहने वाले हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है कि इस राज्य में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है भ्रष्टाचार बढ़ा है, खनिज संपदा की लूट हुई है। इसलिए ये चीजें प्रमाणित करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी और आंदोलन करती थी उसमें सत्यता थी। जी दीपक जी, जब ये रेड शुरू हुए थे तो टाइम्स नाउ से बात किया था सोरेन जी से, और उन्होंने ये कहा था, ये रिएक्शन था कि ये पॉलिटिकल रेड है, कि उनको फ्रेम किया जा रहा है, इसीलिए उनके क्लोज एज को भी रेड किया जा रहा है। देखिए, ये आरोप निराधार है, सत्य के करीब नहीं है। और इसलिए सत्य के करीब नहीं है कि जब छापे पड़ते हैं तो 20 करोड़ रुपए नकदी पाए जाते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के दस्तावेज बरामद होते हैं। जब रेड किए जाते हैं तो 47 पकड़े जाते हैं।